First important formula which I told you was PV is nRT. What does N stand for? Number of moles. Number of moles. P is pressure, V is volume, S is number of moles, R is universal gas constant, and T is the absolute temperature. बराबर है? अच्छा, can I say number of moles is number of molecules upon Avogadro's number? हेलो, पता है ना ये केमिस्ट्री से? Yes. सबको पता है? Okay. Or we can also write that number of moles is mass of the gas upon molar mass. ये भी पता है आप लोग को? ये भी पता है, सब लोगों को पता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है. Third one, mean free path is the distance between two consecutive collisions. आपको पता है KTG में distance between two consecutive collisions, it is denoted by lambda. It will be lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, which are free paths divided by number of collisions. So इसको mean बोलते हैं ना. mean मतलब average. उसके बाद में हमने पढ़ा mean velocity. So C mean is C1 bar plus C2 bar plus dot 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 Cn bar by n. Then we have mean square velocity. इसका square, C mean का square will be C1 square, because वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो स्केलर बन जाता है. फिर इसका फिर से रूट ले लो तो it will be called as root mean square velocity. इसको कहेंगे CRMS, जो हमारे पोर्शन में यूज होता है. that will be under root of C1 square plus C2 square plus dot 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 Cn square by n. Do you know this formula? हेलो, याद है सब लोगों को? Yes, sir. ये important formula है. बाद में the main formula which we had derived was P is 1/3 rho C RMS the whole square. What does P stand for? P, pressure. What does rho stand for? Density. C RMS is RMS. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? Density is mass of the gas upon volume of the gas. C RMS. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? P is बड़ो m को लिख सकते हैं छोटो mn by V. C RMS. Do you agree with me? So बड़ो m is mass of the gas, छोटो m is mass of each molecule into number of molecules. Hello. Yes, sir. Correct. This is very important formula. Very important formula. Every year an examination question comes from this. Next, we have Boyle's law. PV is a constant at constant temperature. You must be knowing P1 V1 is equal to P2 V2. Hello. Yes or no? Yes. Ninth one. CRMS, very important, is under root 3 RT by mu. Very important formula. CRMS is under root 3 RT by mu. को बार बार लिखना है बाबा. This formulas, if you write it again and again, you will get well versed with it. Okay, इसका एक ही ट्रिक है to score 95 plus in your boards is repetitive study. कोई और strategy नहीं है. You understood? There is one strategy only to score in boards: repetitive study. Getting it n number of time. 3 बार 4 बार revision कर लो. इसके लिए टेस्ट दिया करो. Once you give test, you will अपने आप get the marks. So that is only the strategy. और कोई उसका वो नहीं है. CRMS is under root 3 RT by mu.
So I can say over here that CRMS is proportional to root T. Should I So go to yes, sir? here, capital N is for number of molecules, right? Capital N is number of molecules, number of Yes. atoms या number of molecules, जो भी वो टाइम पे दिया है ना उसके हिसाब से, ठीक है ना, डिपेंड ऑन द कंडीशन, बराबर है, ठीक है। और जनरली हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही पकड़ते हैं। तो कुछ केसेस में नंबर ऑफ एटम्स भी दिया रहता है, तो नंबर ऑफ एटम्स भी केमिस्ट्री में ले लिया करते रहेंगे ना आप लोग एन की जगह पर, इफ यू रिमेंबर। हेलो, शायद पता रहेगा आपको। ओके, आई डोंट नो। ओके, ठीक है, चलो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पकड़ लो, रहने दो। Should I go to the next slide? Yes, sir. Please allow me. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Now, this was 9th. I'll go to the 10th question. और किसी को भी any point of the time लग रहा है कि कोई chapter weak है, you consult me. We'll arrange 1-to-1 doubt solving with you. ठीक है ना? हेलो, Okay. मगर पढ़ाई करके आना है, ऐसे डाउट मतलब पूरा Yes, चैप्टर sir. डाउट नहीं होना चाहिए भाई। हाँ, some students come पूरा चैप्टर डाउट है, that means you are not studied. So if you have some doubt, then tell me, message me. I will arrange, okay, doubt solving for you all, so that you all don't remain behind. Getting it now? We are ready to help, but सामने से आओ भाई। Okay. Point number 10. Kinetic energy of a gas is 3/2 PV. क्या लिख सकता हूँ 3/2 nRT? बोलो। 11th. Kinetic energy of a gas per unit mole is 3/2 RT. N निकाल दो इधर से, per unit mole है ना, N moles होते हैं तो। Second, kinetic energy of a gas per molecule. So it is 3/2 RT by A. What is A? Avogadro's number. Hello. Yes, sir. R by A को K भी लिखते हैं कभी, K. The K is called as Boltzmann's constant. इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, मतलब यार आप लोग का क्वेश्चन पेपर में भी आधा से ज्यादा डेटा दिया हुआ रहता है। ओके, यू जस्ट नीड टू पिक अप। आपको कोई वैल्यू याद भी रखनी नहीं है। आर का वैल्यू दिया है, एवोगाड्रोस का वैल्यू दिया रहता है, के का वैल्यू दिया रहता है, मतलब व्हाट डू यू वांट एक्स्ट्रा मैन, यू शुड जस्ट रिमेंबर द फार्मूला। उतना तो करना पड़ेगा ना। ओके, जनरली ऑल वैल्यूज आर गिवन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस पर यूनिट मास is 3/2 RT by mu. Mu is molar mass या molecular mass, जो भी आप बोलते हो। आपके पास 4 गैसेस के बारे में ही पूछा जाता है जनरली। हीलियम 4 ग्राम, हाइड्रोजन 2 ग्राम, नाइट्रोजन 28 ग्राम एंड ऑक्सीजन 32 ग्राम। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड, but generally it is not seen in your examination and they all are in grams. Please remember, please remember. Okay. इसके बाद में इसके न्यूमेरिकल्स हो चुके थे, याद है आप लोगों को? तो भाई इतने पार्ट के न्यूमेरिकल्स आई डन, इफ यू रिमेंबर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इतने Yes, पार्ट sir. के न्यूमेरिकल्स स्टिल आई थिंक 70 व्हाटएवर इज देयर। आई विल ओपन द स्लाइड तो पता चलेगा इतना मैंने कर दिया था न्यूमेरिकल। तो आप लोग न्यूमेरिकल्स रिवाइज करना एंड इट इज सॉल्व्ड इन योर क्या है वो, डाइजेस्ट में सॉल्व्ड है ना, बराबर है? हेलो। Yes, sir. ओके, अच्छा एक फीडबैक लेना है आप लोग से कि हाउ डू यू ऑल फाइंड द डाइजेस्ट? इज दिस डिफिकल्ट टू मैनेज और इट इज इजी टू मैनेज? व्हाट इज द फीडबैक? कि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है तो यू कैन नॉट गिव फीडबैक। Sir, it is easy. It's It is easy. easy or you all want more easy notes? I can see smiles at the face. More easy notes. कि ठीक है, चलेगा, क्या चाहिए बोलो? It's okay, sir. इट्स ओके, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, कुछ रहेगा, तो इससे भी इजी नोट्स है, बहुत पतले वाले नोट्स है।
that also we can arrange for you all. But अगर आपको ये जम रहा है, then don't switch over. If you have some difficulty, then let me know. ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. Question number 15. Point number 15. हम लोग बात करते हैं चार्ल्स लॉ की. Does anyone know what is चार्ल्स लॉ? Yes sir. अरे केमिस्ट्री में पढ़ा है भाई चार्ल्स लॉ. Yes. So Cp minus Cv is equal to R. नो यार ये कहाँ, वो तो मेयर्स रिलेशन है भाई. चार्ल्स लॉ स्कूल में पढ़ा रहेगा. एट कांस्टेंट प्रेशर V is proportional to T. ये सुना है क्या आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. It will be done in your, it is not there in the, यहाँ पर फॉर्मूला में आया है, इसके लिए सिखा रहा हूँ. ठीक है, तो जाने दो. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन बोलो क्या है? So 3/2 kT. एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिलना चाहिए? हेलो सही है ना? हेलो बोलो. एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हिस्सा मिलना चाहिए? हाफ kT. तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा तो, अरे मैन टेल मी फास्ट. ओके चलो इधर आ जाओ. तो आई शुड आस्क यू नो, मोनो एटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस एंड ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक गैस. बोलो. सोहम, मोनो एटॉमिक गैस, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर देयर? So 3. 3 what? ट्रांसलेशनल के रोटेशनल? So translation. हाउ मेनी रोटेशनल? Uh, 0. 0. 0. ओके. दक्ष, दक्ष बेटा. So in monoatomic, हाँ. so argon and helium have only 1 degree, right? No. Degree of freedom means independent movements. See, suppose this is helium. Krish, Yes, sir. it can move in how many directions? X also, Y also, and Z. Z also. Independent movements in how many directions? So 3. 3. तो इसको बोलते हैं 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. Okay. 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना हिस्सा मिल रहा है? हाफ kT. Yes. 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलेगा? So 3/2 kT. 3/2 kT. So can I say kinetic energy जो इसके पास रहेगा, that will be the energy for a monoatomic gas. कितना रहेगा भाई? 3/2 kT. सही है? हेलो चलो अभी बात करते हैं डायटोमिक गैस. दक्ष बेटा, दक्ष. Yes, sir. बोलो डायटोमिक गैस में कितना ट्रांसलेशन, कितना रोटेशन? So 0 translation, Three three sorry, 3 3 translation translation and and 2 rotation. 2 rotation. Why not the third rotation? Because moment of inertia Uh, of that axis becomes equal to 0. बराबर है? Yes, sir. As a whole, suppose hydrogen है, it can translate along x axis. X-axis and Y-axis. हाँ ये तो है ट्रांसलेशन की बात है. बराबर सही है? Yes, sir. It can rotate like this also, it can rotate like this also, but if it rotates about this way, it is a point mass. So moment of inertia इस moment पर 0 हो जाएगा, because it is along that line only ना. शायद वीडियो देखा रहेगा. तो it is 2 rotation. So how many degrees of freedom are there? 5. तो kinetic energy of diatomic gas कितना बना? So 5/2 kT. 5. हेलो सुनो, 5/2. 5/2. 5/2 kT. Sir. Yes or no? Yes, sir. Now if I talk about polyatomic gas,
कितना ट्रांसलेशन, कितना रोटेशन? 3 translational, 2 rotation. 3 rotation. नहीं नहीं, 3 रोटेशन होता है पूरा। Three rotation. तो एक्चुअली अगर हम वाइब्रेशन को पिक्चर में नहीं लेंगे तो कितना होता है? 3 kT. 3 kT, बराबर ना? यहाँ पर आई हैव नॉट टेकन वाइब्रेशन इनटू कंसिडरेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. अब हम ये अगर बेसिक चीज आपको समझ गया तो अभी हम वाइब्रेशन की भी बात करते हैं। अब हम वाइब्रेशन की भी बात करते हैं। I'll talk again. मोनो, डाई, पॉली। सुनो मेरी बात। हाँ अभी ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन। 3 ट्रांसलेशन, 0 रोटेशन, 0 वाइब्रेशन। कितना बना? 3/2. 3/2. डाई में 3, 2। और अगर वाइब्रेशन, अच्छा वाइब्रेशन हैपेंस एट हाउ मेनी टेम्परेचर्स? हाई टेम्परेचर। हाँ याद रखना, दिस हैपेंस एट, डू यू अग्री? Yes, sir. सही है ना? कितना हो गया भाई? So 1. 1, बट 1, दिस 1 जो है ना उसके अंदर 2 छुपे हुए हैं। बिकॉज जब वाइब्रेट करते हैं, आप लोगों ने वेव्स पढ़ा है ना, ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस में जब एक स्प्रिंग वाइब्रेट करती है तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है? स्प्रिंग के पास वाइब्रेशन में 2. पोटेंशियल एनर्जी Potential प्लस kinetic. काइनेटिक। तो कहना है ये एक नहीं है, ये एक जब होगा इनटू 2 कर देने का। हेलो, आर यू गेटिंग इट? Yes. बस एक के अंदर 2 एनर्जीज छुपी हुई है। एक हिस्सा जाएगा के को और एक हिस्सा जाएगा पी को। आर यू गेटिंग इट? तो हाउ मेनी Yes, डायटोमिक गैसेस हैव बीन हैपेंड नाउ? कितना हो गया भाई? 7/2 kT. 7. So this is 7/2 kT. Are you getting my point? This all I am talking at high temperatures, huh? Because vibration only comes at high temperatures. Very good बेटा। पॉली की बात करते हैं। ये 3, ये 3, ये F, बट F को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। सही है क्या? तो कितना हो गया बोलो? एनर्जी कितनी हो गई? हेलो, अरे भाई कितना हो गया? So 3 plus 2F kT. 6 + 2 FKT। नहीं, Sir, 3, हाँ 3 + 2 FKT। एक काम sir, करते हैं, ये 3 7 था ना बेटा, divided by 2 cancel. 6 + 2F/2 kT। बोलो। हेलो, Yes, sir. तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? 3 plus FKT. 3 plus FK. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टेबल। अरे यस और नो बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। थोड़ा सी पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का पूरा कहानी आपको क्लियर हो गया, दिस इज इम्पोर्टेंट, वरना आपको समझ नहीं आएगा इसको। दिस होल थिंग इज इम्पोर्टेंट, इसको मार्क करना। इसके बाद में हम लोगों ने बात किया था we had talked about CP and CV. So what is CP and CV? ये कौन सा point है? 16 point है। Can I take this as the 17th point and I'll come to the 18th point now? 18th point comes up with CV is du by dt। मतलब ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी है ना बेटा, ये सब एनर्जी। ओके, अच्छा जब भी K आएगा ना, K, इट इज एनर्जी फॉर अ मॉलिक्यूल, एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल। और अगर हम लोग मोल की बात करेंगे ना, मोल, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। मतलब जिधर भी K दिख रहा है ना आपको, ये सब K दिख रहा है कि नहीं? दिस इज एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल। एंड इफ आई टेल यू व्हाट इज एनर्जी फॉर मोल, तो K की जगह क्या लिख देने का? हेलो, व्हाट डू यू राइट? आर। R. आर, गेटिंग इट?
हेलो, Yes, sir. चलो अभी मेरी बात सुनो जरा. We'll do at low temperatures only. This is kinetic energy of monoatomic gas per molecule. These are all per molecule. So can anyone tell me what will be per mole? इसका per mole क्या हो जाएगा? 3/2 R. So 3/2 RT. Kinetic energy of monoatomic gas per mole. ये हो जाएगा 3/2 RT. Similarly, this will be 5/2 RT, and this will be 3 RT. सही है ना? Yes. Similarly, this will be 3/2 RT, 7/2 RT mole के बारे में, and this will be 3 plus FRT. Getting it? Hello, hello, hello. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Now, हर एक का डेरिवेटिव निकालते हैं. मोनोएटॉमिक गैस की बात अगर मैं करूं, तो कितना होता है? U कितना होता है? 3/2 RT होता है. सही है. इसका डेरिवेटिव निकालो. डेरिवेटिव निकालेंगे तो T चला जाएगा. 3/2 R. कितना होता है? 3/2 R. 3/2 R. सही. Can you tell me for diatomic gas क्या होता है? I am dealing only at low temperatures. U कितना है? 5/2 RT. तो CV कितना रहेगा? 5/2 R. Are you getting it? Polyatomic gas कितना है? U पीछे देखो ना भाई, कितना है? 3K. 3 kT है. तो U कितना रहेगा? 3 R. 3 RT. तो CV कितना हो गया? 3 R. 3 R. Are you understanding my point? Hello. This is important. इसका शॉर्टकट क्या मालूम है? एक शॉर्टकट है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देखो, CV is F/2R. खत्म. What does F stand for? अरे F क्या है भाई? Degrees of So number of degrees of freedom. degree of freedom. अच्छा मुझे बताओ, मोनो का F कितना है? मोनो का F कितना है? मोनो So 3. 3. 3. देखो आ गया. डाई का F कितना है? 5. 5. और पॉली का F कितना है? 3 रहेगा ना? 3. 3. Just It is 6. Sorry. 6, right? 6. Sorry, 6. करेक्ट है? हेलो. Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट है. ये फॉर्मूला शॉर्टकट है, तो अगर आपको याद रखने में दिक्कत होती है तो आप लोग CV को याद रख सकते हो F/2R से. Is everyone getting my point? Okay, fine. Now I'll come to another relation which is called as Mayer's relation. It says Cp minus Cv is R. So what will be Cp equal to Cv plus R. सही है? अच्छा, मोनो का Cp कितना था? मोनो का Cv कितना था? So 3 5/2 R. 3/2 R. 3/2. तो Cp कितना रहेगा? इसको R जोड़ दो इसमें. 5/2 R. 5/2 R. डायटोमिक गैस में बात करो. Cv कितना है? 5/2 R. तो Cp कितना होगा? 7/2 R. पॉलीएटमिक गैस लो टेम्परेचर कितना है? Cv 3 R. you getting it? हेलो. Yes, sir. अच्छा, यही चीज क्या आप लोग हाई टेम्परेचर के लिए कर सकते हो? सब लोग कर सकते हैं. हेलो. अरे भाई बोलो.
Can you all hear me? Yes. Fine. Now next formula. This is 19.1. We are doing the 20th form. Adiabatic constant. Sir, can you go to the previous slide for a minute? Thank you, sir. Adiabatic constant. That is gamma. Gamma is Cp by Cv. Specific heat of gas at constant pressure to specific heat of gas at constant volume. चलो भाई शुरू करो. सिद्धांत. Yes, sir. मोनोएटमिक गैस का गैमा क्या रहेगा? Cp by Cv. Cp और Cv क्या है? So 5 by 2 R. Cp is So 5. 5 by 2 by 3 by 2. Perfect. ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 by 3. 5 by 3. सोहम डायटमिक गैस बोलो. जल्दी बोलो बेटा. कितना है डायटमिक? Come on, switch on your mic fast. Tell me. So, 7 upon I didn't 5. ask you. Dashk, I didn't ask you, beta. I asked Soham. Soham, you switch on the mic and Yes, sir. Sorry. Yes, Sorry. बोलो जल्दी. हाँ. so it is so 6 by 2. 6 by 2. डायटमिक इसमें 6 by 2 कहाँ आएगा? कितना ही है? दक्ष will tell me. दक्ष कितना होता है? Sir, 7 upon 2 upon 5 upon 2. So it's 7 upon 5. पॉली के लिए ट्राई करो. क्या होगा? Yes or no? Yes. Yes, sir. शॉर्टकट क्या है मालूम है इसका? 1 plus 2 by f. What does f stand for? Degree of freedom. Degree of freedom. खत्म. सीधा आंसर मिलेगा. हेलो. 1 plus 2 by f. Yes, sir. तो 3 शॉर्टकट्स मैंने अभी आपको दिए. Cp Cv क्या था? f by 2r. Cp रहेगा f by 2 plus 1r. एंड गैमा रहेगा 1 plus 2 by f. ये तीनों शॉर्ट ट्रिक्स है याद करने के लिए. सीधा आंसर मिलेगा आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए. Got it? Yes, sir. That's fine. Now हम लोग थोड़ा और बात करते हैं. देखो अभी मेरी बात सुनो. फॉर अ सॉलिड, बेटा सॉलिड जो होता है, सॉलिड अभी सुनो हाँ ध्यान से, ये नई चीज है. सॉलिड जो होता है, इट इज नॉट गैस, हाँ इट इज नॉट लिक्विड. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट सर? सॉलिड. Solid. सॉलिड अपनी जगह से ट्रांसलेट नहीं कर सकता. ना तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स रोटेट कर पाएंगे, तो दे आर नॉट फ्री टू मूव. सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे. लाइक इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ, 1-2 मिनट, आई जस्ट कम ऑन 2 मिनट्स.
Hello. Yes. You all can listen. Hello. Yes, sir. Can you? Okay, fine. इधर ध्यान देना. Just 2 minutes. Yeah. Videos जरा on ही रखो आप लोग के. I can see all. Yes. Videos on, please. Yeah. ठीक है. We're talking about solid. Okay. Solid. Imagine a cube. Can I say all molecules in a solid na, are bounded up like a spring? समझ में आ रहा है क्या? मतलब बर्फ है घर में, बर्फ, आइस. आइस इज सॉलिड ना, उसकी जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना इन द स्ट्रक्चर, दे आर ऑल बाउंडेड. So what can they do? Can they translate? Can they rotate? Or can they vibrate? Sir, बोलो यार, vibrate. कुछ So तो vibrate. vibrate. How many directions they can All vibrate? all the Each directions. molecule can vibrate. Like to and All the fro. 3 directions. Yeah. Each molecule can vibrate. देखो, this can vibrate along So x also, 3. Sir, all the y 3 also, and directions. z. All the 3. सही है? Yes, sir. तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल हुए इसके पास? 3 हुए, x और y और Yes, z sir. वाला. कैन आई से इट हैज 3 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? बट 3 के साथ में 2 मल्टीप्लाई होता है, याद है आपको? Yes, sir. Yes, sir. 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए. Yes, sir. एक के पास एनर्जी होती है हाफ kT, तो 6 के पास कितनी 6 by एनर्जी 2. होगी? 3. 6 by 2. 6 So 3 by kg. 2, 3 kT. 3 kT होगी. दिस इज पर मॉलिक्यूल. दिस इज पर मॉलिक्यूल. अगर मुझे पर मोल मांगता है तो 3 RT. 3 RT. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल बात है ये. तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. इफ आई डिनोट बाय काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ये हो जाएगा 3 RT. तो कोई बता सकता है इसका C कितना रहेगा? हेलो. Oh, sorry, it is 3 kT. Yeah, मैंने मिस्टेक कर दिया. गेटिंग है ना? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. कितना हो गया ये? So 3R. अच्छा, इसमें Cp और Cv नहीं होता है. Cp and Cv are designed only for what, sir? Gases. Only gases. ये क्या है? Solid. सॉलिड है ना भाई. उसका Cp Cv मत निकालने बैठना. हेलो. इसका Yes, गैमा sir. वैमा कुछ नहीं होता है. सही है. अच्छा, सपोज स्पेसिफिकली दिस इज फॉर पर मॉलिक्यूल. पर मॉलिक्यूल. सपोज मैं वाटर की बात करूं, वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? अरे कितना होता है भाई? 3 होता है ना, H2O. 3. Yes. 3 होते हैं. एक के पास इतना है. एक के पास, दिस इज पर. सही है ना बेटा? पर मोल या पर मॉलिक्यूल की बात हो रही है. तो 3 के 1 पास Yes. कितना रहेगा? 3 के पास कितना रहेगा? मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे. 9. 9R. टोटल C कितना हो जाएगा? 3R into 3. That will become 9R. Are you getting my point? What's happening? Yes or no, sir? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Water in solid form, हाँ? Water in solid form की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. So this was a small part which was not covered. I don't think so in the video. If it is covered, then also fine. Not covered, then also you all have understood. इसमें कोई hard नहीं है. अब हम लोग 2-4 sums जो बाकी है, I'll come to that questions and we'll finish it off. Revision is done. We can start with our questions which were left. I just need to see till what questions we had done. We had done till, see, question number 75 से स्टार्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 75 से स्टार्ट करना है. Yeah, 2-3 questions only, and then we can go to radiation. Radiation is the video which we'll be doing next time. I'll be sending the video,
and I'll be giving you 1 week to watch that only one video. कितना 30-35 मिनट्स का है भाई, करके उसको लिख के अपलोड करना है. अभी से थोड़ा मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूँ, आपको लिखना है, वीडियो को देखना है और उसको एक टाइम अपलोड करना है असाइनमेंट को, वरना मैं लेक्चर में नहीं बिठाऊंगा. जो भी आप देखेंगे उसको वन टाइम एज एन असाइनमेंट आपको अपलोड करना है. क्वेश्चन नंबर 75 ऑफ योर डाइजेस्ट. देखो भैया क्या दिया है. गिवन द वैल्यूज ऑफ टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, सीपी कितना दिया है? 3400 कैलोरी पर केजी केल्विन. सीवी कितना दिया है? 2400 कैलोरी पर केजी केल्विन. इसमें ना जो गेम है ना वो यूनिट का गेम है, पूरा गेम यूनिट का है इसमें. फाइंड द वैल्यू ऑफ जे. जे को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. आर का वैल्यू क्या है? 8300 जूल पर केजी केल्विन. क्या फर्क है इनके यूनिट में? कोई बता सकता है क्या फर्क है Sir, दोनों? calorie and joule. कैलोरी और जूल. ध्यान रखो, ध्यान रखो. अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम में भी आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था 11 में कि कौन बड़ा होता है, कैलोरी बड़ा होता है कि जूल बड़ा होता है? किसी को पता है क्या? नहीं पता है? Calorie. कैलोरी इज बिगर. डॉलर इज बिगर और रुपी इज बिगर. आप लोग बोलेंगे डॉलर इज बिगर, बराबर है ना? हेलो, Yes, sir. डॉलर टू रुपी. ओके फाइन. अच्छा, डॉलर टू रुपी जाएगी तो मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? आप लोग को ये Divide. Divide. डॉलर टू रुपी, $100 is how many rupees? 7,000 8,000. मल्टीप्लाई हो रहा है ना यार? अरे हाँ, क्या yes, हो sir. रहा है यार? थोड़ा पैसे का लैंग्वेज नहीं समझ में आता है आप लोग को? सबको समझ में आता है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ अगर हम आते हैं, सॉरी, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है. यस और नो? सो कैलोरी टू जूल, this is a bigger unit and this is a what sir? Smaller unit. I'll multiply by equivalent of heat. एक फैक्टर है जो कन्वर्ट करता है इसको. और वैसे ही जूल टू कैलोरी जाना है तो क्या करेंगे? हेलो, Divide. यस और नो? Yes, sir. The bigger unit, smaller unit, smaller unit. Are you getting it? One more person is there at the door. Just please excuse me. I'll just come. Calorie to joule, calorie to joule, multiply and joule to calorie divide. अभी मेरे को I know this formula. Cp minus Cv is
R, Mayer's relation. और इसमें फर्क क्या है? ये किस में है? कैलोरी. ये किस में है? हेलो, कैलोरी. ये किस में है? जूल. जूल में. जूल टू कैलोरी क्या करने का? डिवाइड बाय जी. सही है ना? तो ये जूल में है ना, इसको किस में लाना पड़ेगा? कैलोरी. क्योंकि यूनिट काम नहीं करेगा ना बाबा. Yes. हेलो, तो Cp माइनस Cv इज R बाय जी. डू यू अग्री विथ मी? अब ये किस में आ गया? कैलोरी. ये किस में आ गया? कैलोरी. ये किस में आ गया पूरा? कैलोरी में. डिड यू गेट इट? डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? अब कुछ नहीं, अभी वैल्यू डालो यार. ये 3400, ये 2400, ये 8300 बाय और सर जी. अब यहाँ पर और एक मिस्टेक है. मिस्टेक है मतलब हमने एक चीज मिस कर दी है यहाँ पर. और कोई यूनिट में फर्क दिख रहा है आप लोग को? और कोई यूनिट में फर्क है क्या? R is in joule. R is in जूल. जूल का कन्वर्जन हो गया ना भाई. हेलो, जूल का कन्वर्जन हो चुका है. हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जूल का कन्वर्जन हो चुका है. हाँ नहीं, बाकी सब सेम है. डाइजेस्ट में रॉन्ग दिया है. सही है ये. दिस इज करेक्ट. इट इज करेक्ट इन द डाइजेस्ट. क्वेश्चन इज गिवन रॉन्ग. तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा भाई? 1000 हो जाएगा ना. हेलो, Yes. बराबर है. प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. ओके ओके ओके. अभी यहाँ पर देखो एक चीज हम मिस कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल Yes, sir. स्पेसिफिक. So it should be joule. We should convert calories into joule now. नो 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 नो, नथिंग. दैट इज करेक्ट. देखो इधर मेरी बात सुनो. ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है. देखो हाँ, अभी मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना. ये जो फॉर्मूला है ना, आई विल रब दिस होल थिंग. ये मैं रब कर रहा हूँ पूरा. ये जो फॉर्मूला है ना मेयर्स रिलेशन का, एक्चुअल फॉर्मूला है Cp dash minus Cv dash is R, is actually for molar Specifically. specific. एंड अगर हम प्रिंसिपल में डील करते हैं ना, यही चीज में प्रिंसिपल. अच्छा, मोलार स्पेसिफिक हीट में क्या फर्क है? मोलार स्पेसिफिक हीट मतलब क्या है? इसका यूनिट, ये तीनों का यूनिट क्या रहेगा मालूम है? ये तीनों का यूनिट रहेगा जूल पर किलोमोल केल्विन और कैलोरी पर किलोमोल केल्विन. ये रहेगा. and if it is Cp minus Cv is R by molar mass, then this will be principal specific heat. इसका यूनिट क्या रहेगा? इसका यूनिट चेंज हो जाएगा. ये हो जाएगा जूल पर केजी के और कैलोरी पर केजी के. बराबर है. अच्छा, अभी हम पीछे जाके यूनिट देखते हैं फिर से. विच इज द यूनिट विच इज कंफर्टेबल विद अस? कैन यू टेल मी विच यूनिट इज कमिंग? देखो इधर, ये केजी के. So if it is kgk, then which formula will I apply? First one or the second one? Hello? Second one. Second one. So I will select this formula and जो भी operations करना है वो ये formula में operations होगा. So I am selecting due to principal specific heat. I will select Cp minus Cv is R by mu, a general formula है. अब हमको मालूम है ये किस में है? कैलोरी में. ये किस में है? कैलोरी में. ये किस में है? जूल में. बराबर है.
अब जूल को कैलोरी में लाना पड़ेगा, तो जूल को कैलोरी में लाने के लिए क्या करने का, डिवाइड दिस बाय जी, तो ये किस में आ गया, कैलोरी में, ये किस में आ गया, कैलोरी में, ये किस में आ गया, कैलोरी में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, तो पहले सिलेक्ट करो फॉर्मूला एंड देन यू सब्स्टिट्यूट। अच्छा, व्हाट इज सीपी 3400 minus 2400, R is 8300, which gas is it? It is hydrogen gas, हाइड्रोजन का गैस का 2 होता है, ये 2 mu is 2 ना, into J, so this will be 1000 is 8300 to J, 8.3 by 2, that is 4.15 joule per calorie। ध्यान रखना है इसको, this is a very important question, and जब भी word principle mentioned है we will select this formula, जब भी word molar mentioned है I will select this formula। और sums हम लोग देखते हैं ताकि आपको और समझ में आएगा। Look over here carefully, we are coming to the next sum so that you all can get more clarity of the sums। चलो, now Sarth, are you there? Sarth, the difference between two molar specific heat, which formula will be applicable? Two molar specific heats, simple it is, I taught you right now baba। hello Hello, sir. Can yeah, you hear me? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मोलार के लिए? The principal specific heat. प्रिंसिपल के लिए होता है भाई। which one will I apply beta? Anyone? Sir, The first one. first Oh yeah, one. shit. Sorry, I didn't see that. Yeah. तो हमारे को मालूम है कि मोलार वर्ड है, तो जब भी मोलार वर्ड आएगा इट इज Cp डैश माइनस Cv डैश इज R। हेलो, now what is given? The difference between two molar specific heat is given, मतलब Cp डैश माइनस Cv डैश दिया हुआ है, डिफरेंस दिया है ना 8000 जूल पर केजी के। यहाँ पे कोई फर्क दिख रहा है आपको? ये मोलार बोला है तो यहाँ पे यूनिट क्या होना चाहिए? kg mole. ये होना चाहिए ना, सही है ना? हेलो, Yes, sir. अपना मोला बोल के केजी लिखा रहा है तो रॉन्ग है ना भाई? हेलो, Yes, sir. and the ratio of the two specific heat is 1.65, मतलब Cp dash by Cv dash कितना है? 1.65। कोई दम ही नहीं है क्या? ये साइमल्टेनियस इक्वेशन से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? हेलो, अरे दो इक्वेशन है भाई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। कैन आई राइट दिस एज, देखो इधर Cp dash minus Cv dash is 8000 and Cp dash by Cv dash is 1.65, तो Cp dash को लिख सकते हैं 1.65 Cp dash minus Cv dash is 8000। Are you agreeing with me? Hello, Yes, sir. अरे इसको इधर लिया भाई, yes or no? So there Yes, will sir. be 1.65 Cv dash minus Cv dash कितना होता है? Getting it? Cv dash will become 8000 by 0.65, you will get 12307.69 joule per kilomole Kelvin। ठीक है, एंड Cp क्या हो जाएगा? यस सर, हु इज दिस? somebody messaged me। Cp डैश क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में डिफरेंस 8000 का है, तो Cp डैश कितना हो जाएगा? Cv डैश प्लस R, that is 12307.69 plus this is 8000 ना, ये एक्चुअली R है ना, ये 8000 होगा ना। हेलो, देखो ना इधर से, Yes, sir. मल्टीप्लाई कितना होगा? 20307.69 जूल पर किलोमोल केल्विन। ये हो गया Cp डैश। तो एक्चुअली देयर वर टू फार्मूलाज, ये एक और वो दूसरा वाला, this is one
and this is second. दोनों को simultaneously solve करो and you will get the resultant answer. Hello, are you there Yes, sir. with me? Next question पर आता है. Okay, so this is over only. It's not anything else. Will be just finding degrees of freedom. ठीक है. चलो मैं आपको है ना, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ. CV is 4.82 किलो कैलोरी per kilomole Kelvin, and the ratio of CP by CV is 1.4. Find universal gas constant. चलो 2 minutes are there. Do it fast. Tell me how to do. अच्छा, ये जो दिया है मैंने, मोलार दिया है कि प्रिंसिपल दिया है, क्या समझ में आ रहा है? Molar. Molar. मोलार दिया, तो कौन सा फार्मूला लगेगा मोलार के लिए? जल्दी बोलो. First one. C dash minus CV dash is R, and these are all dash वाला only. Yeah? That is understood only. बराबर है? हेलो हेलो, यस और नो? अच्छा ठीक है. अभी आपको क्या मालूम है यहाँ से? आपको क्या मालूम है बेटा? CV dash मालूम है आपको? CV CV dash मालूम है, कितना मालूम है? 4.8 एंड CP dash कितना टाइम हो जाएगा? 1.4 CV dash 1.4 CV dash. और CV dash मालूम है ना आपको 4.82? यस और नो? 6.7. कितना हो जाएगा यार? देखो जरा इसको मल्टीप्लाई, इसको भी CV dash ही लिखता हूँ मैं, बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं. ये कितना हो जाएगा? 1.4 CV dash minus CV dash is 0.4 CV dash is R. yes or no? हेलो, 0.4 CV dash कितना होता है? Are you there with me? Are you there? बोलो. yes, कितना होता है मल्टीप्लाई करने पर? so 1.928 1.928. यूनिट क्या रहेगा? जो यूनिट इसका है वही यूनिट रहेगा, किलो कैल पर किलो मोल केल्विन. आर यू गेटिंग इट? हेलो, Yes, sir. तो प्रिंसिपल आया तो R by mu आएगा. What is the big deal in this? So this is all completed part of Mayer's relation and degrees of freedom. Today I'll be releasing one lecture based on radiation. Next Tuesday जब आप बैठेंगे उसके पहले आपको वो चीज़ लिख कर अपलोड करनी है असाइनमेंट सेक्शन में, and then we'll be doing the sums based on radiation. ठीक है? So kinetic theory of gases and radiation will get completed by next Tuesday, and then we can continue further. चलो, thank you, take care, and thanks for attending. Sorry, bye. thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.